कस्टमर आए, ज्वेलरी देखी और बस एक मुस्कान के साथ निकल गए। सेल्स नहीं हुई पर स्टोरी बन गई। Customer is not always term into the terminology of buying and selling. It is the experience what we give to them. He should left the store with a very good memory. हर बार ऐसा नहीं होता है कि मैंने प्रोडक्ट बेच ही दिया, मैंने ये सेल कंक्लूड कर ही दिया and then only then I have achieved my target. It's a proper combo of legacy and Gen Z. कभी कभी ऐसा होता है कि they don't even give a chance to look into or browse into the market. They straight away come down to the store and they make the purchase thinking कि नहीं जो इधर मिल रहा है वो बेस्ट ही मिल रहा है। मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। पहले गोल्ड रेट्स भी मतलब पॉकेट फ्रेंडली थे। गोल्ड वेट भी दे डोंट माइंड। 150 ग्राम्स हो गया, 200 ग्राम्स हो गया, दे डोंट माइंड बिकॉज गोल्ड रेट्स और पॉकेट फ्रेंडली। बिकॉज सी द ओनली थिंग इज उसको 50 ग्राम 60 ग्राम लेना है तो उसको वही लेना है। अब आप वही वेट में उसको कितना अच्छा स्प्रेड दे पा रहे हैं। एंड नाउ गवर्नमेंट आल्सो गिवन ग्रीन सिग्नल टू 9 कैरेट ज्वेलरी एज वेल। क्लाइंट डिसाइड करके नहीं आया है, सो फॉर यू इट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। I have always seen that exhibitions has always been the best medium for sales. This is the only medium where you can reach your customer directly, where you can showcase your jewelry directly to them, and there is no scope of them getting misunderstood via the communication. कस्टमर आए, ज्वेलरी देखी और बस एक मुस्कान के साथ निकल गए। सेल्स नहीं हुई पर स्टोरी बन गई। सो आज हम जानेंगे एक ऐसी ही ब्रांड स्टोरी के बारे में। वेलकम टू जवेरी ब्रदर्स पॉडकास्ट चैनल। माई सेल्फ प्रतीक जवेरी एंड टुडे वी हैव मिस्टर हरदेव जवेरी फ्रॉम भगवती ज्वेलर्स, वेरी यंग एंड वेरी डायनामिक। He is young but not his brand, as he is carrying the legacy of more than 12 decades. So welcome Mr. Hardev. Can I request you to give some brief about your brand? Yes, for sure. हम वो ब्रांड से आ रहे हैं जिस राइट प्रतीक भाई सेठ के जिसने 12 डेकेड्स पूरे किए हैं एंड दैट इटसेल्फ इज अ बेंचमार्क फॉर आवर ब्रांड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम शेयरिंग दिस पॉडकास्ट विद प्रतीक भाई एंड आई वांट टू से दैट कस्टमर बाइंग इज नॉट ऑलवेज term in purchasing. It is always the experience what we give to them. Buying is not a medium of connecting to the customer. It is your relation building process. It is the rapport what you create with them. It is the long term association what you give to them, along with the assurance that you are best with your design, your quality, your finishing, and the customer feels the same which you want to communicate to them. So I am very happy today and I want to say that customer is not always term into the terminology of buying and selling. It is the experience what we give to them. आपके रिप्लाई में ही आज का टॉपिक छिपा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है विनिंग व्हेन यू आर नॉट सेलिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। So, एक बात बताइए कि व्हाट आर दैट सम साइंस दैट अगर परचेज नहीं भी होता है तो और परचेज ना होने के बावजूद कस्टमर एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज लेके जाए। According to me, what I have learned from my father and from the legacy what we have, buying is not always the medium of you interacting with the customer. It is always the hospitality. It is always the feel what you give to them. Always making a term of sales maybe sometimes disconnect you from your customer. Constantly you pitching the product to the customer and not building the rapport itself is you getting disconnected to them. So, आपके कहने का मतलब ये है कि जिस मोमेंट कस्टमर शोरूम के अंदर एंटर होता है उसको एक ऐसा एम्बियंस दिया जाए, एक ऐसा फील दिया जाए और एक ऐसा वार्म वेलकम दिया जाए कि वो एक एक्सपीरियंस लेके जाए। ज्वेलरी अगर वो परचेस करता है नहीं करता है वो बात की बात बट ही शुड लेफ्ट द स्टोर विद अ वेरी गुड मेमोरी। Yes, and that is what we also believe है कि उसका एक्सपीरियंस is what matters to us and to the brand for all the years what we have been. True. तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, डू ब्रांड्स अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जेशंस जबकि कोई डील नहीं हुआ है एंड देयर इज नो मनी इन एक्सचेंज? Right. So like I said कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि मैंने प्रोडक्ट बेच ही दिया, मैंने ये सेल कंक्लूड कर ही दिया and then only then I have achieved my target. The sales according to Bhagwati Jewellers is much wider and much bigger than
just exchanging the product and the amount. According to us, building the rapport and building the relation with the customers that they feel कि हाँ आज मेरे को डिजाइन शायद अच्छा नहीं मिला है या मेरे को शायद और थोड़ा सा एक्सप्लोर मार्केट में करना है, बट स्टिल आई वांट कि भाई मैं जब भी मेरा वो पॉइंट ऑफ परचेज आएगा आई वुड अगेन कम बैक टू द स्टोर and I will give the chance to Bhagwati Jewellers to make the purchase happen. So that feel itself is very important. So आपके रिप्लाई से मुझे ये लग रहा है कि इट्स अ प्रॉपर कॉम्बो ऑफ लेगेसी एंड जेन जी. जैसे यू आर वेरी यंग एंड डायनामिक एंड योर फादर एंड योर फोरफादर्स आर कैरिंग द लेगेसी ओवर मोर देन ओवर 12 डिकेड्स. तो आपके इनपुट्स भी इसके अंदर काफी यूजफुल है भगवती ज्वेलर्स को. बिकॉज जब मैं इतने सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि जो कस्टमर से मेरे फोर फादर्स के लिया उनको मेरे फादर ने भी सामान बेचा और आज हम भी बेच रहे हैं, तो हमने वही देखा कि कस्टमर कभी कोई ऐसा होता है कि दे डोंट इवन गिव अ चांस टू लुक इनटू और ब्राउज इनटू द मार्केट. दे स्ट्रेट अवे कम डाउन टू द स्टोर एंड दे मेक द परचेज थिंकिंग कि नहीं जो इधर मिल रहा है वो बेस्ट ही मिल रहा है. सो आपके रिप्लाई से मुझे गुजराती कहावत याद आ गई, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े. विथ योर इनपुट, सो यू आर कैरिंग द लीगेसी एंड गिविंग योर जनरेशन इनपुट्स एज वेल. सो मतलब आप 100 में से 95 तो अचीव कर ही रहे हो जस्ट बिफोर कस्टमर इज एंटरिंग टू योर स्टोर. यस. सो आई हैव ऑलवेज सीन कि भाई हर बार ये नहीं है कि भाई कस्टमर स्टोर पे आ गया और बस मैंने सामान बेच दिया, मैंने सामान शोकेस कर दिया, मैंने मेरा प्रोडक्ट नॉलेज दे दिया और एंड आई एम डन. इट इज नॉट ऑलवेज दैट प्रोसेस. आज मेरे पास एक कस्टमर आया स्टोर पे और उसने मेरे को एक प्रोडक्ट फाइनलाइज किया या उसको एक ऐसा लगा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकता हूँ फॉर माई परचेजिंग, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि भाई वी शुड नॉट जस्ट पुश द प्रोडक्ट टू द कस्टमर कि ऑलरेडी वो कन्विंस 50%, मेरे को सिर्फ 50% एफर्ट डालना है. अकॉर्डिंग टू अस वी फील कि नहीं उसको वो प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज दे दे और फिर अपने उसका सेल्स पे जाए. तो आपके रिप्लाई से मैं ये कह सकता हूँ एक सिंगल लाइनर में, सेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोडक्ट. Not product, yes, very, and that is what we also do. What kind of gestures or behavior from your side? आपकी तरफ से वो कौन सा जेस्चर और बिहेवियर होगा जो एक इमोशनल प्रिंट कस्टमर के माइंड में लेफ्ट करेगा, छोड़ जाएगा? The best gesture what you can give to a customer is the humble things. I have seen many times and many customers have told us that मैं ये स्टोर में गया तो मेरे को स्टाफ was not that friendly to me. उनको ये दिमाग में था कि भाई शायद मैं परचेज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ब्राउज करने आया हूँ, and they were not that much interested in showing. And where we in Bhagwati Jewellers we train our staff that the sales is not the purpose. Your hospitality, your service, your relation building, your rapport building process is what you should work on. हाँ, तो जिस लेवल की कंपटीशन आज मार्केट में बढ़ रही है तो मैं भी ये समझता हूँ कि सेल इज अ बाई प्रोडक्ट. अगर आप उनको एक अच्छा एम्बियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, एक हम्बलनेस प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो तो सेल कहीं नहीं जाने वाली. Yes, 100. So the same training you are giving to your team members, staff members as Yes, that is the first training what we give and what we convey to our team as well. so बहुत बढ़िया है. मतलब सेल इज अ बाई प्रोडक्ट. Yes, sale is always the byproduct. It is never the entire goal of Bhagwati Jewellers. It is just the part of the process. So आप कोई ऐसी ब्रांड या कोई ऐसे मेस्ट्रो को जानते हैं इंडस्ट्री के हु इज अ नॉन सेलिंग सेल पर्सन? मतलब वो क्या चीजें डिफरेंटली करते हैं कि जो नॉन सेल को भी वो सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? When I joined the business, वो टाइम पे मेरे को बहुत लोगों ने बोला you join this course, you do this university, you go to this university, you go do these classes, and I was very clear that my father Jairaj Zaveri itself is a university. Wow. And what I have seen over the years is कि he has never seen as a customer just as a point कि मैं उसको ये चीज बेच. He has never seen a customer as a person who has come down to the store just for with the medium of purchasing. He has always seen a customer कि मैं इसका इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करूँ कि वो तो लेके जाएगा ही जाएगा via this process, पर वो अपने साथ अपने जैसे ही पूरे अपने ग्रुप को लेके आएगा. So this is what I have learned and that is what my milestone is for the sales what we are achieving in the numbers as well. So जो ब्रांड, ऐसी कोई ब्रांड को आप जानते हो वो भी भगवती ज्वेलर्स है, और ऐसे कोई मेस्ट्रो को आप जानते हो that is himself Mr. Jairaj Zaveri, your father. Yes. Great. So मतलब काफी मुझे खुशी फील हुई कि आपका ये रिप्लाई सुन के कि जो चीज आपने
बचपन से देखी है, Yes. आपके ग्रैंडफादर ने फादर को हैंड ओवर की, फादर ने आपको हैंड ओवर की, सो विथ योर इनपुट्स यू विल हैंड इट ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. Yes, that is course. दैट इज अ ग्रेट थिंग. मेरे माइंड में ये है कि अगर कस्टमर बिना परचेस किए आपके स्टोर से या स्टॉल से चला जाता है तो एक इंटरेक्शन आप वो कौन सा छोड़ना चाहेंगे कि जिससे उनका माइंड मतलब उनके माइंड में वो चीज टिक हो जाए कि नहीं यार इधर एक सेकंड थॉट तो देना चाहिए मुझे. मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफाई किया कि व्हेन द कस्टमर कम्स टू द स्टोर, उसने आपको बोला कि भाई मेरे को दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई एम लुकिंग फॉर, सो यू शुड जस्ट कैच द कीवर्ड्स कि भाई उसने मेरे पास से ये चीज मांगी पहले, तो यू शुड पुश द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर. देन यू शुड अंडरस्टैंड देयर बजटिंग, एंड वंस यू हैव अंडरस्टैंड देयर डिजाइन एंड बजटिंग, देन यू शुड मेक इट अ point that you converted into sales. And even if they are not in the stage of making a purchase, then also you should be at the same calmness and the same humbleness which was there once they enter the store. That should not matter the entire communication or the way of communication of you towards the customer. दिस इज वेरी ट्रू रिप्लाई फ्रॉम यू कि जैसे आज के दिन में थोड़ा कस्टमर थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है. एक्चुअली ईगो इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, लेकिन आपने अगर जहाँ बजट पूछ लिया ना तो इट हर्ट्स देम. मतलब सी asking the budget is not that casual way. सो उसको लड़की वे में आप कैसा ट्रिकी ये इज कि पहले उसे जब मेरे को प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन दिया तो मैंने उसको 5 प्रोडक्ट दिखाए ऑफ डिफरेंट वेट रेंज, और इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने उसको बताया कि दिस इज ऑफ दिस वेट, दिस इज ऑफ दिस वेट एंड दिस इज ऑफ दिस. यू नेवर टॉक अबाउट द प्राइस. We never talk about the budget, we never talk about the price. It is always the process. जब मैंने उसको बोला कि this is 50, this is 100, this is 150, तो वही मेरे को रोक देगा कि I am just looking somewhere close to 50 or 60 का. I don't want to go to the budget of 100. So that is, yeah. दैट्स अगेन अ वेरी ट्रिकी वे. मतलब बिना पूछे आपने उसका बजट जान लिया. Yes. Because customer nowadays कहीं पे भी छोटा सा चूक हो गया वो तुरंत अपने ईगो पे ले लेगा तो अपना पूरा परचेस. और आज की काफी दिनों की जो वो फैमिली के पीछे की मेहनत है या काफी घंटों की मेहनत है वो दैट जस्ट वैनिश इन वन मोमेंट. Yes. तो वो काफी ध्यान रखना पड़ता है. Yes. सो ये चीज अगर समझो कि इन योर एब्सेंस व्हेन योर टीम मेंबर्स और योर स्टाफ मेंबर्स अटेंडिंग द कस्टमर, तो ये चीज उनको भी ट्रेन किया हुआ है कि राइट नेवर आस्क द budget and never go straight about the cost and the budgeting on the first go. Very right. So as a jewelry brand, how can you turn a no into a maybe or sure shot purchase? Like I said कि it is just एक ये आपका insight काफी useful रहेगा आपके competitors को भी. Yes, we are very open in sharing what we are doing, because it is there is never a thumb rule also in business. It is always very dynamic. It changes to customer, but some rules and some process remains constant.